Good morning, dear students. Today, I will narrate a very interesting story, The Meeting Pool by Ruskin Bond. I am Dr. Madhvika Mathur. First, I will tell you something about the author who has written this story. Ruskin Bond is an eminent contemporary Indian writer of British descent. He was born on May 19, 1934 in Kasauli, India. He authored inspiring children's books. To honor his work of literature, he was conferred with Sahitya Akademi Award in 1922 for his story Our Trees Still Grows in Dehra. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. He won several writing competitions in school like the Evan Divinity Prize and the Haley Literature Prize. He wrote his first short story, Untouchable, at the age of 16 years in the year 1950. His first novel was The Room on the Roof. It is a semi-autobiographical story of an orphaned boy named Rusty. Bond wrote Vagrants in the Valley as a sequel to it. His novel Rain in the Mountains was about his years spent in Missouri. His interest in paranormal activities led him to write Ghost Stories from the Raj, A Season of Ghosts, and A Face in the Dark. The Hindi film Junoon is based on his historical novella A Flight of Pigeons, based on an episode during the Indian Rebellion of 1857. Ruskin Bond made his big screen appearance through Vishal Bharadwaj's film Saath Khoon Maaf, based on his short story Susanna's Seven Husbands. He has written over 300 short stories, essays, and novels, and more than 30 books for children. Now I will narrate this story, The Meeting Pool. Students, it is a short story. It is also known as My Boyhood Pool. And it is about boyhood days. The story starts with Rusty, who is the narrator, strolling on a road. It is about to rain. And then suddenly, he hears the sound of water running, just like in a stream, behind a dark line of forest. He goes there and finds a stream coming down from the mountain and lying over a shingle. He takes it as an easy to hang out pool. So much excited, he goes running to break the news to his close friends, Anil and Somi. So students, these are the three main characters. One is Rusty, who is the narrator of the story. Second character, who is a very close friend of Rusty, his name is Anil. And the third character name is Somi. So these three boys, they are close friends. Rusty, Anil और सोमी ये तीनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और इन तीनों में से रस्टी जो है वो नरेटर है यानी ये कहानी सुना रहा है. So they name it as Rusty's Pool. They here means these two other boys, Anil and Somi. So what did they decide? कि रस्टी ने इस पूल को ढूंढा है तो उस पूल का नाम ही उन्होंने रस्टीज पूल रख दिया. They often meet and have fun in swimming. Other than that, they try hard to catch fish, but to no avail. So, क्या हुआ कहानी में? ये लोग स्विमिंग करते हैं उस पूल में, खूब मजे करते हैं. कई बार कोशिश करते हैं कि फिश, मछली भी पकड़े उस पूल में, बट उसमें वो सफल नहीं होते.
One day, Anil explodes one rocky side with the gunpowder. As a result, he gets trapped in the explosion. He is saved by Rusty and Somi. Another day, they plan to build a dam on one side to deepen the pool. But due to torrential rain, it gets washed away. So does their clothes. After that, they sneak secretly at their homes. So आप देख रहे हैं ये लोग बहुत ही नोटी बच्चे हैं, कुछ ना कुछ नया हर रोज प्लान करते हैं। एक दिन तो ये डिसाइड करते हैं कि पूल को डीप करने के लिए उस पर एक डैम बनाया जाए, बट इतनी तेज बारिश होती है कि उनका बनाया हुआ जो डैम होता है वो उसके साथ बह जाता है। और ना सिर्फ जो उन्होंने दीवार सी बनाई होती है डैम बनाने के लिए वो बहती है, बल्कि साथ में उनके खुद के कपड़े भी उसमें बह जाते हैं और फिर उन्हें छुपते छुपाते अपने घर तक जाना पड़ता है। Other than basic fun, wrestling with one another was their prime pastime activity. They also rode buffaloes until thrown away in the muddy water. Often, they would come there after the school. At times, they would come there at night and remain involved with the serenity of the nature. They discovered that pool so that they could remain away from the hustle and bustle of the city and be good friends, always lost in mischief. सब हम क्या देखते हैं कहानी में? स्विमिंग के अलावा भी उन लोगों के पास कई सारे तरह के पास टाइम एक्टिविटीज हुआ करती थी, कई सारे खेल हुआ करते थे, जिसमें एक था रेसलिंग करना, कुश्ती करना एक दूसरे के साथ में। ना सिर्फ कुश्ती, बल्कि हम क्या देखते हैं, कई बार वो बफलोज भैंस के ऊपर बैठकर भी इधर से उधर घूमते, इतनी देर तक उस बफलो के ऊपर बैठे रहते कि फाइनली तंग होकर वो उनको अपने ऊपर से छिटक कर मिट्टी भरे पानी में गिरा देता था। इतना उसको थका देते थे, इतना उसको बफलो को तंग कर देते थे। और ज्यादातर वो लोग स्कूल खत्म होने के बाद इस पूल पर आते थे। कई बार वो लोग रात में भी उस पूल तक आए ताकि वहां के सीरीन एकदम शांत एटमॉस्फेयर को, एकदम शांत वातावरण को वो एंजॉय कर सके। उन्होंने ये भी देखा कि शहर की भाग दौड़ से दूर ये जो पूल था एक ऐसी जगह थी जहां उनको बहुत शांति मिलती थी। उन्हें बहुत मजा आता था उन तीनों दोस्तों को, और क्योंकि कोई उनको टोकने वाला नहीं था तो यहाँ पर वो खूब मिस्चिफ, खूब शैतानियां भी किया करते थे। The pool not only symbolized the bond of friendship between them, but also became a part of their consciousness. They decide to return on 5th of April 1964 at midday, that is 10 years later, to the pool again. अब ये जो पूल था, ये जो तालाब था उनका, ये ना सिर्फ उनकी दोस्ती का प्रतीक था, बल्कि उनकी कॉन्शियसनेस में भी उसका एक बहुत गहरा, उनके अंतरात्मा पर भी उसका एक बहुत गहरा प्रभाव था। सो तीनों दोस्त मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आज से 10 साल बाद जब वापस से 5th अप्रैल आएगी 1964 में, तब वो तीनों वापस यहाँ आकर मिलेंगे। रस्टी कीप्स अप हिज वर्ड एंड कम्स टू द पूल। हम क्या देखते हैं, रस्टी 10 साल बाद उस जगह पर वापस लौट कर आता है, और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, जैसा कि उसके शब्द थे कि मैं वापस आऊंगा, वो अपने उन शब्दों पर खरा उतरता है। Rusty was the only one who went to the pool on the scheduled day. He was disappointed that his friends did not keep up their promise. However, there is no bitterness as he understands that with the passage of time, their needs and priorities have changed. अब हम क्या देखते हैं, उस शेड्यूल्ड डे यानी जिस दिन को उन्होंने डिसाइड किया था 10 साल बाद, 5 अप्रैल को रस्टी वहां पहुंचता है उस पूल पर, लेकिन वो क्या देखता है, उसके दोनों दोस्त उस दिन नहीं आए थे।
बट हम क्या देखते हैं, उसको मन में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, थोड़ी सी निराशा होती है कि उसके फ्रेंड्स अपना वायदा उन्होंने नहीं निभाया था, उस अपना वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया किया था। लेकिन उसके मन में कोई बिटरनेस, कोई बुरी भावना अपने दोस्तों के लिए नहीं आती, क्योंकि वो समझ जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय गुजरने के साथ, उन लोगों की नीड्स, उन लोगों की आवश्यकताएं, उनकी प्रायोरिटी जो है वो अब बदल गई है। मतलब जीवन में उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो अब समय जो है, समय के साथ वो उनकी आवश्यकता और उनके लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है वो बदल गया है। जब वो लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो उनके लिए अपनी दोस्ती, अपने प्रोमिसेस इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। लेकिन बड़े होने के बाद सबकी 10 साल बीतने के बाद उन लोगों की जो जरूरतें थी समय के साथ बदल गई थी। Suddenly he hears the splashing of water. To his amazement, he discovers another pool and another group of friends splashing about in it. He imagines himself and his friends in their place. The story thus conveys the message that life goes on, come what may. सो आगे हम क्या देखते हैं, उसके मन में कोई बुरी भावना, कोई कड़वाहट अपने दोस्तों के लिए नहीं आई थी, क्योंकि वो समझ गया था कि समय के साथ उनकी जो जरूरत थी, उनकी जो प्रायोरिटी थी वो बदल चुकी है। तभी अचानक उसको पानी में छपाक छपाक खेलने की सी आवाजें आती है, जैसे कोई पानी में स्प्लैश कर रहा हो। स्प्लैश यानी पानी में जब हम छपाक करके आवाज करते हैं हाथ से, तो उसे इंग्लिश में स्प्लैश कहा जाता है, तो उसे पानी के छपाके की आवाज आती है। ही इज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित रह जाता है ये देखकर कि वहां पर एक और पूल है और उसमें एक दूसरा बच्चों का जो ग्रुप है वो उस पूल के अंदर पानी में खेल रहा है, छपाके मार रहा है। और वो क्या इमेजिन करता है, उसी समय उसके मन में वो इमेजिन करता है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो ग्रुप है, ये वो खुद है और उसके दोस्त हैं। और ये मन में सोचते ही वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। सो ये स्टोरी हमें क्या मैसेज कन्वे करती है, दैट लाइफ गोज ऑन, यानी जीवन जो है वह चलता रहता है, कम वॉट में, यानी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना चेंज हो, समय क्यों ना कितने ही साल क्यों ना गुजर गए हो, लेकिन जीवन जो है वो चलता रहता है। हमारी आवश्यकताएं, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी जरूरतें और कौन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है समय के साथ वो बदल सकता है, लेकिन जीवन जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता ही रहता है। Now coming to the central theme, what is the theme of this short story? It describes how the requirements and necessities of an individual changes by the passage of time. यानी कहानी में बताती है समय के साथ में एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की जरूरतें और उसकी आवश्यकताएं किस तरह से चेंज होती जाती हैं। समय बीतता जाता है, वो बड़ा होता है समय के साथ, और बड़ा होने के साथ ही उसका जरूरतें और उसकी आवश्यकताएं जो है सब बदल जाती हैं। The story conveys that life goes on, come what may, and our dreams undergo change due to the deceitful journey of time. ये कहानी हमें ये भी कन्वे करती है कि जीवन तो चल रहा है, लेकिन हमारे जो ड्रीम्स, हमारे जो सपने थे, समय के साथ उनमें बदलाव आ जाता है। जैसे ये बच्चे क्या चाहते थे, 10 साल बाद यहाँ मिले और अपनी दोस्ती जो है उनकी, अपनी दोस्ती को बताया कि भाई हम कितने अच्छे दोस्त हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, समय ने जैसे उनको डिसीट किया, उनके साथ एक धोखा सा किया, और उनकी जो जरूरतें थी समय के साथ वो बदल गई। अब उनकी प्रायोरिटी उनकी दोस्ती से ज्यादा उनका परिवार, या हो सकता है उनकी नौकरी हो रही हो। इस वजह से दो जने वहां नहीं पहुंच पाते और दो वहां पहुंचते हैं। सो दिस इज व्हाट द सेंट्रल थीम, जो मेन थीम है इसकी वो यही है कि जीवन आगे बढ़ता रहता है और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैंने लिख के रखे हैं, और आई बिलीव कि आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर तैयार करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफी मदद करेंगे।
और ये सब इस कहानी पर ही आधारित है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द थ्री बॉयज प्रॉमिस ईच अदर? व्हाट डिड द बॉयज नॉट रियलाइज व्हेन दे मेड दैट प्रॉमिस? ओके। Second question is, describe the other fun activities that Rusty enjoyed with his friends at the pool. यानी आपको सारी फन एक्टिविटीज बतानी है जो वहां पर वो पूल पर किया करते थे स्विमिंग के अलावा भी। Question third is, in what state did Rusty find the stream when he went back to look at the pool? जब वो लौट के जाता है तो किस उसमें हालत में, किस स्टेट में उन्हें वो पूल मिलता है? Why was Rusty disappointed? उसे निराशा क्यों होती है? According to Rusty, what has prevented his friends from keeping their promise? और आपको क्या लगता है, रस्टी को क्या महसूस हुआ कि किस कारण से उसके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने अपना वायदा नहीं निभाया? इनके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको स्टोरी में ही मिलेंगे। और अगर आपको फिर भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप इस पर लिंक पर अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगी। लेकिन पहले एक बार आप लोगों को खुद इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। और इसी के साथ हमारी स्टोरी टेलिंग का जो है ये स्लाइड ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।